So, once again, good morning, dear friends. So, I welcome you in today's morning class. So, since 4 5 days, we have been studying the lesson The Lost Spring by Anis Jung, which is related and which highlights on the evil of Indian society, and that is child labor. So, till yesterday, dear friends, we have seen the story of Sahib Alam or Sahib, who belonged to a family of rag pickers and who was a migrant. His family is a migrant family from Bangladesh, and they used to live in Simapuri. Uh, Now, this next story in the next part of this lesson is about a boy, Mukesh, and Madam Anis Jung, the writer of this story, the writer of this lesson, is extremely successful in depicting Mukesh and his family's plight also, as she has depicted the life story of Sahib and the uh, horrible condition of the rag pickers in Simapuri and so on. So, dear friend, the second part, specially, is about the life of that boy Mukesh, who comes from a family of bangle makers. But what is his dream? His dream is to become a driver. His dream is to become a driver, and that is why this story is entitled, particularly the next part is I Want to Drive a Car. So, dear friends, till yesterday we have seen the story of Sahib, which highlights the deplorable condition of rag pickers. Now, Anis Jung is very much sympathetic about these sects of society who are poor, deprived, and devoid of any kind of government aid. Aid means help होता है. Now we will see another story of Mukesh who wants to be a driver. This part of the story entitled I Want to Drive a Car. So let us see this story, dear friends. Now, this account, this particular account of the story of Mukesh is set in Firozabad, and Firozabad is very much popular for its glass blowing industry, that is Bengal industry, and a staggering 40,000 children are a part of this business there. Around 20 to 40,000 children are a part of this business, and any law that forbids the child labor and has been brutally ignored here. You see, they hardly know the children working in the Bengal factories. They hardly, though entire families are working in the factories, and they barely know that this is illegal, or they barely care. They hardly care that this is illegal, and we shouldn't have to do this kind of work. And see, there are some middlemen, brokers in between them. Their parents used to work in the same factory. So, this is very much hard for them to keep themselves away from that business. Small children, you see, small girls, until marriages, they used to work in the Bengal factories. Also, dear friend, the working environment and the living conditions are very much pathetic there. Children live in dingy cells and work around hot furnaces that make them blind when they enter, you see, adulthood.
they have to work in a very horrible condition in Bengal factories and so on. So though there are so many laws against the labor, the child labor and so on, but no one cared there. No one cared. Okay. So this is the story of Mukesh, who wants to be a driver. Now see, I have collected these photographs from the internet for you. Okay, a driver should know all kinds of, you see, mechanical work also. So this is the first part. We will read. I want to drive a car. मुकेश इंसिस्ट्स. इंसिस्ट का मतलब होता है मित्रों जोर देना. हाँ, इंसिस्ट मीन्स जोर देना. I want to drive a car. Mukesh insists on being his own master. In the, you see, in the last part of the story, we have seen Saheb. He was a rag picker and he used to collect rags, and rag picking for him is a very satisfying profession. But at the end of the story, very twisting end, dear friends, is there, that he started working in a tea stall and he is no more his own master. This is the ending of the story. Now, Anish Jung pick up the same thread of that story and she took that thread to this story until to Mukesh, and she said that Mukesh insisted on being his own master and he announced that I will be a motor mechanic. क्या बनेगा वो मोटर मैकेनिक बनेगा and he wanted to drive a car. So I asked, Madam asked, do you know anything about cars? तुम्हें पता भी है कार के बारे में कुछ? उसने कहा I will learn to drive a car. He said to become a successful mechanic, I should be able to drive a car, so I shall learn to drive a car. मैं कार चलाना सीख जाऊंगा. Looking straight into my eyes. This means he was very confident that looking straight into eyes का मतलब है he was very confident. उसको बड़ा विश्वास था. डायरेक्टली मेरे आंखों में राइटर बोल रही है कि वो देखकर बोल रहा था कि मैं मैडम कार ड्राइव करना सीख जाऊंगा. His dream looms like a mirage. You see this new word here, dear friends, mirage. Very fine word. Mirage. His dream looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town Firozabad, famous for its bangles. उसका जो सपना था ये एक डे ड्रीम जैसा लग रहा था, मिराज के जैसा लग रहा था. मिराज बोलते हैं मित्रों एक इल्यूजन, भ्रम. देखिए मैंने थोड़ा यहाँ पे एक ये वर्ड है वहाँ मिराज. तो बोलती है कि उसका जो सपना है शायद ही उसका सपना ये सपना ही रह जाएगा. मिराज है उसके लिए, इल्यूजन है. देखिए इसको बोलते हैं मिराज. मिराज मीन्स यू सी एन इल्यूजन, भ्रम, अ होप और विश दैट कैनॉट बी फुलफिल्ड. देखिए ये आदमी जो है ये किसी चीज़ की तरफ देख रहा है जो वहाँ है ही नहीं, है ना, इस तरीके से. ये देखिए आप कभी रास्ते से जाते हैं तो आपको थोड़ा सा सामने ऐसा कुछ पानी जैसा नज़र आता है, कुछ ऐसा आग की लपटे वगैरह होती है ना. और इसको मृग तृष्णा एक शब्द है हिंदी में, वो भी बोलते हैं मिराज. ठीक है. और आपने अगर सुना होगा कभी तो जगजीत सिंह का बड़ा फेमस एल्बम भी है एक, मिराज नाम का, गज़ल का एल्बम है. तो मिराज यानी भ्रम, मिराज यानी भ्रम, इल्यूजन किसी बात का. तो राइटर का कहना है कि उसके लिए अपने मुकेश के लिए मुझे लग रहा है कि भ्रम साबित होगा, क्योंकि फिरोजाबाद की धूल जैसी
उसका ये भ्रम जो है फिरोजाबाद की धूल में उड़ जाएगा। समझ रहे ना? तो फिरोजाबाद काय के लिए फेमस है? फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। काय के लिए फेमस है? ग्लोइंग इंडस्ट्री बोलते हैं उसको, बैंगल्स इंडस्ट्री। लेकिन उस ग्लोइंग इंडस्ट्री के पीछे कितना घना अंधकार है ये अब हम देखेंगे। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। हर दूसरी फैमिली जो है फिरोजाबाद की, ये बैंगल मेकिंग में एंगेज्ड है, मतलब बिजी है, एक्ट इन वर्क ऑफ बैंगल मेकिंग। It is the center of India's glass blowing industry, where families have spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land. It seems, ऐसा लगता है, इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज वहाँ पे, इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री, छोटी छोटी फैक्ट्रीज वहाँ पे है। डिंजी सेल्स होती है फैक्ट्रीज में, हाँ, फर्नेसेस होती है, हॉट भट्टियाँ होती है वहाँ पे, और भट्टियों के अंदर जो है काम करते हैं बच्चे, नौजवान, महिलाएं, छोटी छोटी बच्चियां वहाँ काम करती है। और इतना काम वो भट्टी के अंदर वो उनको करना पड़ता है, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे। कोई कानून उनकी रक्षा वहाँ पर नहीं कर रहा है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। ग्लास ब्लोइंग का मतलब होता है बैंगल इंडस्ट्री। हाँ, ये ग्लास ब्लोइंग है ना, इसका मतलब है बैंगल इंडस्ट्री। ठीक। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंड जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस। फर्नेस होता है भट्टी, फर्नेस यानी भट्टी, आग की भट्टियाँ, फर्नेस। ओके, FURNAC, देखिए आगे मैंने लिखा है। फर्नेस यानी और लार्ज वेरी हॉट फायर यूज्ड फॉर मेल्टिंग मेटल्स। ठीक। ये देखिए, ये आग की भट्टी है ये। ठीक। इसमें बैंगल्स को पिघलाया जाता है ना, और पक्का किया जाता है, ग्लास। ठीक। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंड जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, वेल्डिंग ग्लास, और वेल्डिंग ग्लास की फर्नेस है, वो ग्लास को वेल्ड किया जाता है ना। वेल्डिंग का भी मतलब मैंने लिखा है, वेल्डिंग यानी जॉइनिंग। वेल्डिंग यानी जिंदगी ऐसा गोल बनाया जाता है ना, इस तरीके से ऐसे गोल बैंगल बनाई जाती है ना। तो छोटे छोटे टुकड़ों को लेते हैं और वो बैंगल्स बनाते हैं। तो बैंगल इंडस्ट्रीज़ है वो। हाँ, आगे मैंने चित्र बहुत सारे लिए हैं इसमें, आपको पता चलेगा। सो गुड। वेल्डिंग ग्लास मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड, इट सीम्स। और ऐसा लगता है इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, छोटी छोटी डिंजी सेल्स में फैली हुई, सकरी सेल्स में, भट्टियों में इतने लोग वहाँ काम करते हैं, लगभग हर फैमिली। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया की सारी महिलाओं के लिए जो है वहीं चूड़ियाँ बन रही है। तो आगे बढ़ते हैं। दिस इज द वर्ड मीनिंग, यू जस्ट गो थ्रू इट, and this is the explanation, my dear friends. I just read it for you. The boy was confident and replied that he would learn to drive a car. His dream was far away from the reality, and although the boy was confident, he would succumb to the societal pressures. सोसाइटी के प्रेशर से उसके ऊपर, क्योंकि बैंगल इंडस्ट्रीज में काम करना सिर्फ प्रोफेशन नहीं उनके लिए, वो एक पर्टिकुलर कास्ट को बिलोंग करते हैं, कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। बैंगल है ना, कसार वगैरह भी उनको बोलते हैं। तो उस पर्टिकुलर कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, और उनके जनरेशन टू जनरेशन जो है उस कैटेगरी में जो है वो बैंगल मेकिंग का बिजनेस चलता है। तो अपने आप को वो दूर नहीं रख सकते, क्योंकि ज़्यादा पढ़े लिखे भी वो नहीं होते, और दूसरा क्या करेंगे, बैंगल मेकिंग के अलावा कोई चारा उनके पास नहीं होता है। He lived in Firozabad, which was famous for glass bangles. The writer felt that the boy's dreams would not materialize. Materialize यानी come true. Materialize का मतलब यहाँ पे होता है come true, and gradually get influenced by the dusty streets of Firozabad. She wanted to say that as every family in the town of Firozabad was involved in the glass bangle industry, so would Mukesh do with the passage of time. In the future,
जो है मुकेश को भी वही काम करना पड़ेगा, क्योंकि सारे के सारे परिवार उसमें एंगेज है. She tells us that Firozabad was the main town of India for the glass blowing industry. The families had been involved in working at furnaces, welding glass, and making bangles for generations. They made so many bangles that it seemed that they made bangles for all the women of the world. Okay, आगे देखिए बच्चे यहाँ पर काम कर रहे हैं. देखिए भट्टियाँ कैसी जलाती है ना, गोल आकार उनको. ये बच्ची देखिए यहाँ पे गोल आकार दे रही है, और उम्र देखिए इनकी, ये बच्चों की उम्र देखिए बेचारों की. हाँ, और ये देखिए वहाँ पे पाइल्स लगी है चूड़ियों की, है ना. बड़ा कम मेहनताना में इनको वहाँ काम करना पड़ता है. चाइल्ड लेबर हम स्पीचेस देते रहते हैं चाइल्ड लेबर के ऊपर, ये लॉ है वो लॉ है ये है वो है, लेकिन फिरोज़ाबाद में या और कहीं ऐसी कोई बात नहीं है. आगे ये आगे का पार्ट है. मुकेश फैमिली इज अमंग देम. मुकेश फैमिली भी इसी का हिस्सा है. हम एक लास्ट का वर्ड देख लेते, काय का हिस्सा है तो, है ना, बैंगल इंडस्ट्री का हिस्सा है, समझ रहे ना. मुकेश फैमिली इज अमंग देम. None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures in dingy cells without air and light. That the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours. तो मुकेश फैमिली भी इसी का हिस्सा है, इसी बिजनेस का. किसी को भी वहाँ पे पता नहीं है कि ये इलीगल है. नन ऑफ देम नो दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रेन. पता भी है तो उसकी तरफ वो ध्यान नहीं दे रहे. None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces. फर्नेस यानी भट्टियाँ. विथ हाई टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर का भट्टियाँ वहाँ पर जलाई जाती है, और उसमें बच्चों को बड़े डिंगी सेल्स में, छोटे छोटे सकरे सेल्स में काम करना पड़ता है. इन डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट. देखिए डिंजी का मतलब क्या होता है. डिंजी मीन्स डर्टी एंड डार्क. इलीगल का मीनिंग होता है अगेंस्ट द लॉ. ठीक, डिंजी यानी डर्टी एंड डार्क. If enforced, could get him all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours. तो अगर इनको पता हो, इनको जानकारी हो, अवेयरनेस इनके अंदर आ जाए किस चीज़ का, कि ये इलीगल है, तो ये बच्चे 20,000 बच्चे वहाँ से कभी भी मुक्त हो सकते हैं, है ना. जो दिन रात वहाँ पर डे लाइट आवर्स, समझ रहे ना, दिन रात वहाँ पर काम करते रहते हैं. कोई डे की शिफ्ट में काम करता है, कोई रात की शिफ्ट में काम करता है, कोई दिन रात काम करता है. ऑफन लूजिंग ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज. और इसमें से कई बच्चों का जो है आई साइट चला जाता है. ऑफन लूजिंग ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज. व्हाट डज इट मीन ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज? उनके आंखों की रोशनी कई बार चली जाती है. नाउ मुकेश's eyes beam as he volunteers to take me home. मुकेश की आंखों में एक अलग चमक थी. ये बीम का मतलब चमक होता है, BEAM. Which he proudly says is being rebuilt. मुकेश की आंखें एकदम चमक गई. मुकेश थोड़ा इनको पहचानता है, और वो जो है मैडम को लेकर गया उसके घर, और उसको बड़ा गर्व लग रहा था, अभिमान लग रहा था, ये बताते हुए कि मैडम मेरा घर फिर से बन रहा है ना, फिर से रिबिल्ट हो रहा है, तो आप मेरे साथ चलिए, है ना. बीइंग रिबिल्ट. वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेंस. देखिए नया शब्द है स्टिंकिंग लेंस. मैंने पूरे वर्ड के मीनिंग लिख दिए. हाँ, बिल्कुल डोंट वरी. स्टिंकिंग लेंस यानी बैड स्मेल बोलते हैं. चोक्ड विद गार्बेज. तो ऐसे सकरे सकरे रास्तों से वो गई उसके साथ, मुकेश के साथ. अब आप सोच सकते होंगे वो कहाँ रहते होंगे, है ना. बैंगल मेकर्स फैमिलीज. पास्ट होम्स दैट रिमेन hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting. क्या कर रहे हैं,
ह्यूमंस और एनिमल्स को एग्जिस्ट कर रहे हैं वहाँ पे, एक साथ रहने लगे, को एग्जिस्टेंट, एक साथ रहना। और रिमेन हॉवेल्स ऑफ क्रम्बलिंग वॉल्स, और पूरे के पूरे घर वहाँ पे कैसे बने हैं, पूरी भीड़ भाड़ जमा है वहाँ पे, किस चीज़ की, क्रम्बलिंग वॉल्स है। क्रम्बलिंग का मतलब होता है टूटे फूटे, डैमेज्ड। क्रम्बलिंग वॉल्स है। वॉबली डोअर्स है, फ्लैपिंग डोअर्स समझते हैं ना, वॉबली डोअर्स है, खराब डोअर्स है। नो विंडोज एंड क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन ए प्रीमिवल स्टेट। प्रीमिवल यानी ओल्ड होता है, प्रीमिवल का मतलब होता है ओल्ड, एंशियंट, पुराने ज़माने की। ठीक है, देखिए कोई वर्ड की मीनिंग फिर से एक बार देख लेते हैं। स्टिंगिंग लेंस मतलब बैड स्मेल ऑफ लेंस, लेंस यानी नालिया। क्रम्बलिंग यानी ब्रोकन एंड डैमेज्ड। वॉबली यानी फ्लैप एंड नॉट फिट। दरवाजे कैसे, टीन के दरवाजे होंगे, उसके दरवाजे होंगे, है ना। ये तस्वीर की तरफ देखिए मित्रों, ये किस तरीके की तस्वीर है। ये घर, ऐसे ऐसे घरों में ये बच्चे सब के सब लोग कैसे रहते होंगे, है ना। ये महिलाएं देखिए, ये पाइल्स बना रही है। किस चीज़ की पाइल्स है ये, है ना, चूड़ियों की। ओके। प्रीमियल यानी वेरी एंशियंट, पुराने, और फ्रेल यानी कमज़ोर, वेल यानी घूंघट। आगे आएंगे वर्ड, हम देखेंगे। सो वी वॉक डाउन स्टिंगिंग लेन्स choked with garbage, past homes that remain hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of human and animals coexisting in primeval state. स्टेट यानी कंडीशन है यहाँ पे, हाँ, स्टेट यानी कोई राज्य नहीं, समझे ना। स्टेट मीन्स करनी, प्रीमियल यानी ओल्ड। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस। तो चलते 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 मैडम भी उसके पीछे पीछे जा रही है। कहाँ ले जा रहा है भाई, वो बोल रहा है कि मेरा घर रिबिल्ड हो रहा है, चलिए देखने। तो उसके पीछे पीछे मैडम जाने लगी और उसका घर बाद में नजर आया। तो एक घर के सामने वो रुक गया। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, बैंग्स ए वॉबली आयरन डोर विथ हिज फुट। और अपने पैर से जो है एक आयरन डोर को, है ना, बड़ा फ्लैप वाला आयरन डोर था। फ्लैप समझते हैं ना, दो दरवाजे दोनों तरफ। उस आयरन दरवाजे को पैर से उसने मारा, पैर से ही खुलता होगा वह, है ना, हाथ से खुलता नहीं होगा। एंड पुशेस इट ओपन, और दरवाजा खुला। कहाँ गए वो, वी एंटर ए हाफ बिल्ड शैक। शैक मीन्स अंडर कंस्ट्रक्टेड होम। शैक, हट को भी बोलते शैक, ठीक। अभी बन रहा है वो घर। इन वन पार्ट ऑफ इट, थैच्ड विथ डेड ग्रास, इज ए फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स ए लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनैच लीव्स। स्पिनैच होता है पालक, सिजलिंग यानी चमकदार, मान लीजिए उबल रहा है वहाँ पे वो। तो एक फायरवुड स्टोव वहाँ पे रखा था, समझ रहे, फायरवुड स्टोव, चूल्हा रखा था, और उसके ऊपर एक बड़ा सा वेसल रखा था, बड़ा सा बर्तन रखा था, और उस बर्तन में पालक उबल रहा था, पालक की सब्जी बन रही थी, ठीक है ना, स्पिनच लीव्स। ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर, इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, प्लेटर होते हैं बड़े बड़े प्लेट्स, यूज टू सर्व फूड, उसको बोलते हैं प्लेटर्स। आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और बड़े बड़े बर्तनों में जो है खूब सारा वेजिटेबल रखा था, काट, पूरा कटा हुआ वेजिटेबल, है ना, बर्तन, बैगन काट के रखे होंगे, आलू काट के रखे होंगे, समझे ना, एक ही घर। और फ्रेल यंग वुमन, फ्रेल यानी वीक होता है दोस्तों, फ्रेल मीन्स वीक, WEAK, वीक, वीक यानी कमजोर। एक कमजोर सी लेडी इज कुकिंग द इवनिंग मील, वो शाम का खाना बना रही है ना। लोग गए भाई, जैसे फैमिली के मेंबर्स, मर्द लोग जो है बाहर गए काम करने, वापस आएंगे, फॉर द होल फैमिली, वो सबके लिए खाना बना रही है। थ्रू आईज फिल्ड विथ स्मोक सी स्माइल, उसकी आंखों में जो है ना, मिट्टी की भट्टी है ना, वो उस पर खाना बना रही है बेचारी। तो उसकी आंखों में जो है वो आग, धूल, वो सॉरी क्या बोलते हैं उसको, स्मोक, धुआं है पूरा, धुआं से उसकी आग जो है एकदम से जो है पूरी भरी हुई है।
लेकिन फिर भी वो उसने देखा कोई गेस्ट आया है तो वो हंसी। वो कौन है? सी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर्स ब्रदर। मुकेश की एल्डर ब्रदर की वाइफ है वो, मतलब मुकेश की भाभी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर, ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन सी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू। लेकिन अब वो बड़ी बहू है घर की, तो उसकी कमांड आ गई पूरे घर के ऊपर, क्योंकि सबके लिए खाना बनाती है वो, है ना, सब संभालती होगी घर को। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, और 3 लोगों के चार्ज में है वो। कौन कौन? मुकेश, मुकेश का बड़ा भाई, और मुकेश के बड़े भाई के पापा। समझ रहे ना, वो 3 men है वहाँ पे उस घर में। मुकेश सबसे छोटा है। हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर, ठीक है ना, उसका हस्बैंड मतलब मुकेश का बड़ा भाई। वेन द ओल्डर मैन एंटर्स, जब वो मुकेश के फादर आए, है ना, मुकेश के फादर जब आए, ओल्डर मैन एंटर्स, सी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल। वो एक दीवार के पीछे चली गई, है ना, बड़े लोग आते हैं तो, यूपी बिहार बड़े बड़े जगह देखिए घूंघट का कस्टम है, तो एक ब्रोकन वॉल के पीछे छिप गई, मतलब चली गई। एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस। वेल यानी होता है दोस्तों घूंघट, वेल यानी घूंघट, और अपना घूंघट जो है उसने चेहरे के ऊपर ला लिया। ओके, कुछ वर्ड के मीनिंग और देखिए। देखिए डेस्टिनी एंड नसीब, ये शैक यानी स्मॉल बिल्डिंग, अंडर कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग होती है। थैच्ड यानी होता है रूफ मेड अप ऑफ ड्राई ग्रास। क्या रखा है ऊपर? स्पिनच यानी पालक की सब्जी बन रही है। प्लेटर्स, लार्ज प्लेट्स यूज टू सर्व फूड। विड्रॉ यानी थोड़ी पीछे हो जाना। इम्पावरिस्ट आगे आएगा, ये पुअर को बोलते हैं, पुअर व्यक्ति को बोलते हैं। और ये देखिए ये शब्द है ना, ये मैंने घूंघट, और बड़ी महिला जो है फ्रेल। फ्रेल और घूंघट किसके लिए भी यूज़ हुए हैं? उस महिला के लिए यूज़ हुए हैं। वो भाभी, किसकी भाभी? ज़्यादा नहीं उम्र में, लेकिन मुकेश की भाभी है, और पूरे घर को संभाले हुई है, सबका खाना वगैरह बनाती है। In this case, the elder is an impoverished Bengal maker. Bengal maker। तो इस केस में, जहाँ तक हमने मुकेश की फैमिली के बारे में सुना है, तो इस केस में जो है ये जो व्यक्ति दिख रहा है गरीब सा, वही बेंगल मेकर है, मतलब मेन बेंगल मेकर है उस घर का। इम्पोवरिस्ड मीन्स पुअर। Despite long years of hard labor, first as a tailor, then as a bangle maker, he has failed to renovate a house। तो बहुत समय तक उस जीवन में अपने पूरे हार्ड लेबर उसने किया है। पहले वो टेलर था, है ना, कपड़े वगैरह सीता था। बाद में वो क्या बना? बाद में वो बैंगल मेकर बना। ही हैज फेल्ड टू रिनोवेट ए हाउस। और इतना समय खर्च करने के बाद भी जो है एज ए लेबरर, है ना, दोनों जगह लेबरर है वो, तो वो अपने घर को फिर से नहीं बना पाया, रिनोवेट नहीं करा पाया, रिन्यू नहीं करा पाया, रिबिल्ट नहीं बना करा पाया। सेंड इज 2 sons टू स्कूल्स, ठीक है, ना अपने घर को रिनोवेट कर पाया, ना ही अपने बच्चों को वो स्कूल भेज पाया। इतने साल की लेबर के बाद, मतलब ये लेबर जो है इस तरीके का कितना वैल्यूलेस है, आप समझ सकते हैं। अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज सकते, सरकारी स्कूल भी नहीं। वो चाहते हैं कि हमारे सर्वाइवल में ये योगदान दे। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज। सर सिर्फ उसने एक काम किया अपने जीवन में, क्या? जो वो जानता है वो उनको सिखाए। क्या जानता है वो? क्या जानते हो मियाँ? क्या जानते हो साहब? उसके पापा क्या जानते हैं? द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। बस बैंगल मेकिंग। तो मुकेश का भी वही है। लेकिन मुकेश का सपना क्या है? सबसे पहले हमने देखा, मुकेश वांट्स टू ड्राइव ए कार, ही वांट्स टू बी ए मैकेनिक ऑफ कार्स। उसको वो बैंगल मेकिंग से थोड़ा वो प्रोफेशन कैसा लगता है? थोड़ा सा अच्छा लगता है। ओके, तो ये वर्ड के मीनिंग सब आप लिख लेना। ये 2 एक्सप्लेनेशंस है, अलग अलग जगह पर मैंने किए हैं, आप वो भी लिख लेना, ठीक है। ये हर एक जगह है, देखिए बैंगल मेकिंग करते रहे लोग यहाँ पे। और इसके आगे का पार्ट जो है दोस्तों वो हम कल पढ़ेंगे, हाँ, ठीक है। इट इज़ इनफ टाइम, ऑलरेडी 30 minutes, ओके। जब हमारा लेक्चर होगा तो 40-45 मिनट और चलेगा। सो thank you very much for your valuable time, and I wish that
you will be in best of your health for the days to come. So thank you very much. We will meet tomorrow.